Hello friends, welcome once again. Now in one of the videos, the title was how to handle your mistakes and eliminate your weakness in life. I had given my own story from the birth to my SSB and subsequent journey, and wherein I told you that I was born in Kerala. My father was in the army, and I have a sister 5 years younger to me. I had my class 1 education in Kerala, but later was shifted under certain circumstances to Delhi. So I repeated class 1. Then I from Delhi I went to Lucknow, Alwar, Mathura, Tejpur, Goa, where I did my from Goa where I did my 10th and I got 53.73 in Goa from CBSE board. Then I shifted my school to uh, junior college, which was closer to a beach in Goa, Miramar Beach, basically to get away from my younger sister. There I dropped in 12th, took a drop in 12th, and subsequently I collected my 11th certificate, which had only 42%. So 42% dropped from 12th, joined the army while my father was still in service in July 1985. And then subsequently, while at Ambala, posted in Ambala, I did my 12th under the influence of one of my seniors, Nayak Sunil Chand Chetri, with whom I am still in touch. Then I cleared my ACC written. This was instructed by my second in command, 2IC, Colonel Tandon. I told you all that story at First Armored Patiala. Then this was a dress that I wore for my SSB interview, for my first SSB interview. And I went there with my, track record. And surprisingly, I got recommended in the first attempt with no coaching. And subsequently, I joined the Army, ACC wing, IMA, GTO, retired, and now I'm before you taking this class. So I'll request you to watch that video, how to handle mistakes and eliminate your weakness in life. Now, this video, in fact, I had mentioned that I'll cover sometime later. Okay, how did I prepare for my SSB, and with this kind of academic track record and the family background, my life was a bundle of mistake till age 17, 18. You could have made sense out of it, or if not, I'll request you to watch that video previous wala. And so it is interesting कि मेरा जैसा बंदा क्यों recommend हुआ, क्योंकि today when I look back I can understand क्यों मुझे recommend किया होगा. But at that point of time when I went to SSB, at that point definitely मेरा बहुत ही बुरा हाल था. And अगर आप देखोगे तो when I went to the SSB, this was my state, है ना, 53.73 in 10th, 11th में 42, 12th dropout. Again I joined the army, and after 5 years I did my क्या बोलते हैं 12th from the army. That also I got 57.8. And today when I talk to you, I'm a completely transformed kind of a person. I'm BSc, BTech, BSc में I top, BTech में I did extremely well. Gold medalist in applied psychology, distinction in MBA, self-management, crisis management, post-graduate diploma in counseling and spiritual, that pursuing post-graduation, all that. So when I talk today, the one which is to the right I show, and it is very good. I enjoy saying that. But then for each coin, there's a other side. My other side is this. So when I went to SSB, one to the left is what I had carried. And I think most of you are better than me. So the question is, how did I do it? Definitely, this requires moving outside your comfort zone. इसीलिए आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा थोड़ा कड़वा है, बिकॉज मेरा अपना जर्नी बड़ा टफ रहा है. कहीं पे भी मैंने देखा होगा कि once having joined the army, मैंने कहीं टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं लगाया. एवरीवेयर आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग, मुझे जीवन में कुछ पाना है तो उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए अपने ऊपर परिश्रम करना पड़ेगा. एंड आई एम ओके विद दैट. टुडे ऑल्सो आई एम डूइंग दैट एज अ GTO. इस क्लास में भी, SSB की ट्रेनिंग में भी, आई एम वेरी ऑनेस्ट इन माई ट्रेनिंग. कोई किसी को झूठा तसल्ली नहीं देता, भले यू ज्वाइन यू डोंट ज्वाइन, सिंपली डज नॉट मैटर. सो मेरे ट्रेनिंग की जो फिलॉसफी है वो शायद मेरे जीवन की अपनी जर्नी से है, इसलिए बहुत सारे लोगों को मेरा ट्रेनिंग बड़ा कड़वा लगता है, बट ये सच्चा है. मैं यहाँ पे आपको कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे रहा, बिकॉज मेरे जीवन में कहीं पे भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है. यू कैन सी माई जर्नी. एंड मेरी जर्नी को और समझने के लिए मैं आपको कुछ वीडियोस का रेफरेंस दूंगा. सम ऑफ द 2 वीडियोस आर सर्विस सेंट्रिक है, नाम से है, लेकिन वो
it is for across everybody, so I'll request you to watch that. One is ACC 119 जब आया हुआ था तो उनके लिए एक वीडियो बनाया था, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू SSB preparation. Next is service entry, very low SSB clearance percentage, right strategy to prepare for the SSB interview, what is the syllabus for SSB interview, how I approach my SSB interview preparation, this is the one which I referred पहले, and how to handle your mistakes and eliminate your weakness in life. For all people who feel कि आपके लाइफ में बहुत गलतियां हो गया है, SSB में क्या होगा, डरो मत, जो हो गया हो गया. Next is self awareness key to success, जिसमें जोहारी विंडो कॉन्सेप्ट किया हुआ है. एंड लास्ट वीडियो इज सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का एक वीडियो, माइंड मैटर्स. आई विल रिक्वेस्ट टू वॉच दैट. और इसके अलावा आई विल रिक्वेस्ट यू टू जॉइन द A4CP का टेलीग्राम चैनल, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज जो शेयर किए हुए हैं जो कि वीडियोस में शायद नहीं है, वहाँ पे शेयर किया. आई विल रिक्वेस्ट टू टेक इट फ्रॉम देयर. उसमें से दो चीज़ें जो इस वीडियो के लिए लेना होगा वो है CIQ, जो इंटरव्यू का CIQ क्वेश्चंस है, एंड OLQ का डेफिनेशन. सो दैट शेयर देयर. इसके अलावा जूनियर लीडरशिप कोर्स जो OTA चेन्नई में चलता है, the syllabus of that is also shared in that part 1 and part 2. request you to collect it from there, because उसके साथ ये बहुत मीनिंग होगा. इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि जिन लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट टू वॉच दोज वीडियोस एंड देन कम टू दिस विल मेक मोर सेंस, बिकॉज यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि हाउ डिड Ganesh Babu, having joined the army with so much of mistakes in life, how did he get cleared without coaching in the first attempt? उसके बारे में छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दूंगा. और उसी के आधार पर, मेरे अपने जीवन के जर्नी के आधार पर, once I became the G2, I devised a module, perception management of candidates for improved selection, जहाँ पे मैंने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, Armed Forces Officer Selection Orientation Program and Assisted Introspection. Assisted Introspection is today known as Self-Management Leadership, and Assisted Introspection is a sub-module under this. So I'll request you to watch that video also, Perception Management of Candidates for इम्प्रूव सिलेक्शन. देयर इज अ वीडियो बाय दैट नेम, तो उस वीडियो को देखना, एंड उससे कनेक्टेड बहुत सारे रिसोर्सेज आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा. सो रिक्वेस्ट टू वॉच दैट. नाउ सो व्हेन आई वेंट टू द SSB, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आई वेंट विथ लार्ज नंबर ऑफ मिस्टेक. माई फादर वॉज अ सर्विंग सुबेदा मेजर, and he had all the will and the financial resources to that. Not that he was a lower middle class family, but he was willing to, teach me and do everything. But शायद मैं ही गड़बड़ कर दिया था. तो when I went to the SSB, I went with this marks: 53 in 10th, 42 in 11th. उसके बाद joined the army as a Sipahi in Corps of Signals while my father was still in active service in Goa. Subsequently, after my training was over, I did my 12th from Directorate of Army Education with 57.8%, and from 1st Armored Division Regiment, my 2IC, Colonel Tandon, forced me to appear for the ACC return. Though I wanted to go, but not immediately. I wanted to build up myself, but उन्होंने जल्दी भेज दिया for whatever reason. Those details are given in the previous video, and I cleared my return. इसके बारे में डिटेल्स के लिए I'll request you to watch this video, how I approached my SSB interview preparation. Now what I want to tell you was that उस वीडियो में मैंने एक बात बोला था कि जब मैं SSB में गया था, मुझे SSB में रेकमेंड होने से ज़्यादा अपनी इज्जत बचाने की चिंता ज़्यादा थी कि they should not say कि ये गधा आ गया, सुबेदा मेजर साहब का बेटा, निकम्मा, जिसने पढ़ाई में गड़बड़ किया और जाके फौज में एनरोल हो गया. मुझे इज्जत की चिंता ज़्यादा थी, बिकॉज आई हैड रियलाइज दैट इन माई लाइफ आई हैड मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स ऑफ ऑल काइंड्स. एरर ऑफ जजमेंट बनाया, एरर ऑफ इंटेंट बनाया, रिपीटेटिव मिस्टेक बनाया, एंड मैं मुखौटा पहनने की बजाय मुझे पता चल गया था मेरे जीवन में बहुत मुखौटा है, और उस मुखौटा ने मेरे पारिवारिक जीवन में भी, मेरे मम्मी पापा, बहन के साथ और पढ़ाई में सब जगह नुकसान किया. मतलब आई सफर्ड ए लॉट बिकॉज ऑफ दिस मास्क, है ना. अच्छा बेटा बनने की एक्टिंग करता था, बट था नहीं, ऐसे करता था जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, करता नहीं था. तो मैं एक्चुअली SSB में मास्क लगाने से ज़्यादा मैं मास्क से ही परेशान हो चुका था. उसका ये रेफरेंस इस वीडियोस में दिया हुआ. मेनी ऑफ यू कुड कनेक्ट कि सर आपकी स्टोरी हमारी स्टोरी से मिलती जुलती है. यस, मेरे फादर जो है फौज में थे, सिग्नल्स में थे, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता मुझे सब कुछ पता नहीं था. मुझे सब पता था, NDA के बारे में पता था, FMC के बारे में पता था. पता होने से क्या होता है, पता तो SSB का प्रोसीजर पता होने से क्या होता है, तैयारी तो नहीं किया.
तो मैं आई वॉज अ बंडल ऑफ मिस्टेक। तो एसएसबी में एक चीज़ तो मेरा बड़ा क्लियर था कि रेकमेंड तो होगा नहीं, मुझे बस अब झूठ से ही नफरत हो गया था। मुझे अब झूठ का सहारा लेना नहीं, बिकॉज झूठ के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी की इस तरह से वाट लगा रखी थी। एंड माई पेरेंट्स वर क्वाइट अपसेट विथ मी द वे आई हैड कंडक्टेड माई सेल्फ एज ए यंग एडल्ट टीनेजर फेज में। सो और उसके बावजूद द बेस्ट पार्ट वॉज आफ्टर द कॉन्फ्रेंस आई गॉट रिकमेंडेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। हमारे बैच से 2 लोग हुए थे, एक आर एस सांगवान हु इज नाउ स्टिल री एम्प्लॉयड में सर्विस कर रहा श्रीनगर में, एंड वन वॉज मी। एक अजित सिंह ख्यालिया करके भी था फ्रॉम ए डिफरेंट बैच, बट हमारे बैच से, मेरे बैच से, पर्टिकुलर बैच से, जो जीटीओ का ग्रुप होता है जो मेरा 10 में से, उसमें से हम लोग 2 हुए थे। तो आई वॉज वन ऑफ देम एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज ये मैं कैसे सेलेक्ट हो गया। कहीं ना कहीं एसएसबी को जो चाहिए था वो जाने अनजाने में मैंने दे दिया, और बदले में मुझे उम्मीद भी नहीं था, मुझे मिल गया। इट इज़ दैट, I will not say easy, it's that straightforward. You have to first give before you get it. And मुझे get की कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे give में भी कोई recommendation होने के लिए नहीं था। I was preparing myself so that मेरी इज्जत बच जाए। मुझे ये लोग, खासकर इंटरव्यूइंग ऑफिसर, बिकॉज ही इज़ द वन ओनली हु स्पीक्स, बाकी साइड तो मुझसे बात नहीं करेगा, ये भी मुझसे बात नहीं करेगा। दिस इज द पर्सन, ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब जो भी थे, आई डोंट रिमेंबर, कि वो मुझे एक गधा ना बोले। आई नो आई वॉज ए गधा, बट आई हैव डन लॉट ऑफ करेक्शन। सो मैं उसी करेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। सो इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो, सो आई रिक्वेस्ट टू वॉच दैट। सो अगर आप मेरा PIQ को देखोगे, इट विल बी समथिंग लाइक दैट। मैं शायद अगस्त 89 के करीब गया था वहाँ पे। माई फादर वॉज अ सुबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट तो बाद में आया था। आई वॉज अ सिग्नल मैन एंड आई वॉज पोस्टेड इन पटियाला, केरला का रहने वाला हूँ। एंड दिस वॉज माई फादर, मदर एंड ऑल दैट। उससे फादर का तनख्वाह भी बहुत कम होता था। आई हैड ए सिस्टर, जब मैं SSB गया था, शी वॉज इन BA फर्स्ट ईयर। एंड दिस इज माई मार्क्स। जब मार्क्स देखोगे तो 83 में 53% 12th, एंड देन 12th में डायरेक्टरेट ऑफ आर्मी एजुकेशन से 1988, so there's a huge gap, and 58%. So naturally my PIQ is a weak PIQ, ना कोई काम का हॉबीज एंड इंटरेस्ट, ना कोई स्पेशल अचीवमेंट्स। हाँ, गोवा में अंडर-19 खेला था, वो क्रिकेट, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया था। सो मेरा PIQ बहुत वीक PIQ है। एक सुबेदार मेजर साहब का, सर्विंग सुबेदार मेजर, पूरा टाइम फैमिली साथ में रखा। मेरा लाइफ में सीक्वेंस आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया है। और एकेडमिक परफॉर्मेंस ये है, कोई हॉबीज़ नहीं, कोई खास इंटरेस्ट नहीं। कुछ चीज़ें था जो अच्छा, वो बाद में बताऊंगा। तो माई PIQ इज़ अ वेरी वीक PIQ. It has got very poor academic performance and my life record, track record. So मेरे achievements in life have been extremely poor. And I joined the army not to serve the nation, but to get away from the education. So मुझे कोई उम्मीद नहीं था SSB से कि मैं रेकमेंड होऊंगा। एंड क्योंकि उम्मीद नहीं था, उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरे अंदर एक डेस्परेशन, एक छटपटाहट नहीं था कि रिकमेंडेशन होने का। उस टाइम तो 2 स्टार्स नहीं होता था, 1 स्टार। तो मुझे कोई 1 स्टार ऑन द शोल्डर का ना चाहत था, ना मैं अपने आँखों में अपने आप को उस काबिल समझता था, क्योंकि मैंने इतनी गलतियाँ किया थी। बट उसके बावजूद, सिंस आई हैड टू गो टू SSB, मोर देन रिकमेंडेशन, माई सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज एट स्टेक, क्योंकि तब तक मुझे एहसास हो गया था कि मैंने बहुत गलतियां किया। तो SSB की तैयारी मेरे लिए मोर देन रिकमेंडेशन, ये इज्जत की लड़ाई थी। सो आई वर्कड ऑन माई सेल्फ सो दैट मेरी इज्जत बच जाए। उसमें मैंने कम्युनिकेशंस पे भी काम किया, करंट अफेयर्स पे भी काम किया, बहुत कुछ किया। मैं धीरे धीरे उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा क्या किया, डिपेंडिंग अपॉन हाउ डू यू टेक दिस वीडियो एंड आपका फीडबैक कैसे आता है। इस PIQ के साथ आई विल स्पेसिफिकली इस वीडियो में फोकस ऑन द इंटरव्यू। बाकी का मुझे तो, GTO को तो मुझे ध्यान भी नहीं है, साइक का भी मुझे ध्यान नहीं है, बट इसके लिए मैंने मेंटली क्या किया होगा, एक रफ आइडिया है, बट आई विल टेल यू, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया होगा, क्योंकि मैं जो आज बोलूँगा उससे हट के नहीं किया होगा, बिकॉज नकाब तो मैंने पहना ही नहीं, ना आज पहनता हूँ। ओके, सो लेट्स टेक इंटरव्यू में क्या हुआ होगा। तो मुझे, ये मैं हूँ, मुझे बुलाने से पहले उन्होंने मेरा PIQ देखा होगा, और PIQ में मेरा, आपको पता है, इट्स अ वीक PIQ। अगर आप भी होगा तो ये क्या सुबेदार मेजर का बेटा है, इसको क्लास 1 से उठा के इधर लेके गए। तो मेरा क्लास 10th में ही 1-2 साल ज़्यादा था,
सब लोग 15-16 में करते हैं, मैं वहाँ पे भी, सब लोग 14-15 में करते थे उस टाइम में, मैं वहाँ पे भी 1 साल एक्स्ट्रा लगा क्योंकि केरला से शिफ्ट किया है। उसके बाद 10th और 12th के बीच में गैप है, देन आई हैव जॉइन द आर्मी, देन आई हैव टेकन अ ड्रॉप, सो आई एम श्योर इट्स अ वीक PIQ। अगर आप भी होंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो मैं बड़ी बड़ी बातें बोलने के बाद कोई मतलब नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मैंने क्या किया, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। एक वीडियो है जिसका मैंने रेफरेंस पीछे दिया हुआ है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ SSB। SSB का सिलेबस TAT WAT SRT नहीं है, SSB का सिलेबस है आपका जीवन। और आपने मेरे जीवन में देखा होगा, तो मैंने जब SSB गया था, मैं SSB में प्रेजेंट में गया हूँ, मेरे पीछे एक पास्ट है और आगे फ्यूचर है। SSB में रेकमेंड होना या नॉन रेकमेंड होना फ्यूचर में है, वो डिपेंड करेगा प्रेजेंट में मैं SSB में क्या परफॉर्म करता हूँ, और प्रेजेंट में क्या परफॉर्म करता हूँ वो डिपेंड करता है पास्ट में मैंने कैसे प्रिपेयर किया। ये बड़ा क्लियर कट है। नाउ इफ यू लुक एट माय जर्नी, लाइफ का जर्नी, तो मेरा सबसे वीक है PIQ में फैमिली, अर्ली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क हिस्ट्री, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी इन द आर्मी, देन स्पेयर टाइम, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, जर्नल नॉलेज एंड सेल्फ अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एंड सोशल अवेयरनेस एंड सेल्फ इवेल्युएशन। इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इस एजुकेशनल वाले को यू कैनॉट डू एनीथिंग बिकॉज इट हैज ऑलरेडी हैपन इन द पास्ट। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। द ओनली थिंग आई डिड बेटर वॉज कि 12th में मैंने मेहनत किया, तब भी मेरे 60% फर्स्ट क्लास नहीं आया, 57 पे अटक गया। इसका मतलब है अगर आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में कोई गलती किया है तो ये गलती को आप छुपा नहीं सकते, बिकॉज सॉल्ट सर्टिफिकेट के साथ डॉक्यूमेंटेड है, यू कैन नॉट चेंज इट। सो आई हैड ऑल्सो मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स हियर। आई हैड इवन मेड मिस्टेक्स इन माई फैमिली लाइफ। आई वॉज नॉट ए ओबीडियंट चाइल्ड, आई वॉज नॉट ए डिसिप्लिन चाइल्ड। मैं एक बिगड़ा हुआ लड़का था, डेली मार खाना, पापा मम्मी की बात नहीं करना, उनको झूठ बोलना, सारे उल्टे काम किए थे। सो मेरा ये भी वीक था, ये भी वीक था। वर्क हिस्ट्री में आर्मी में चला गया था, आगे बताता हूँ। हॉबीज एंड इंटरेस्ट पहले तो कुछ भी नहीं था, जनरल नॉलेज मेरा पहले शुरुआत में कुछ नहीं था, सेल्फ अवेयरनेस पहले कुछ नहीं था। लुक व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से सुनना। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो वन place where you cannot change the past, you can only learn from the past, it is your educational background. अगर आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में कोई गलती किया है उसको पास्ट में करेक्ट नहीं कर सकते, पास्ट में करेक्ट नहीं कर सकते। सो ये मुझे एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो गया था कि नो अमाउंट ऑफ गिल्ट कैन चेंज द पास्ट। कि मैंने 12th में गलती किया, पढ़ाई नहीं किया, 10th में गलती किया, पढ़ाई नहीं किया, ये बड़ा तकलीफ होता था, लेकिन ये समझ में आ गया था मैं कुछ नहीं कर सकता था। और मैंने 12th ड्रॉप किया और उसके बाद नेक्स्ट बार पढ़ाई नहीं किया, मतलब ज्वाइन ही नहीं किया। सो मैंने कुंडा तो कर दिया था, तो बहुत दुख होता था। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई, इससे करेक्ट, दुखी होने से होगा कुछ नहीं, आई कैन नॉट करेक्ट इट। द ओनली थिंग आई डिड वॉज कि फौज में आने के बाद में मैंने 12th में जो किया उसमें ईमानदारी से कोशिश किया। 60% लाने का मन था, वो 60 भी नहीं आया, 58 पे जाके अटक गया। सो इसमें नाउ what I could correct was I could correct my relationship with my mummy, papa and sister. This was possible even though I had spoiled it, but I realized कि मेरा relationship खराब हो गया। This I could correct it. उसके लिए मुझे past से मुखौटा लगाने से तो ये होगा नहीं, ना करेक्शन होगा, ना मैं कितना छुपा दूंगा। सो एक चीज़ बड़ा क्लियर आ गया था, मुखौटा तो लगाने था, क्योंकि मुखौटा लगा के तो मैं ना SSB में जाना चाहता था ना जीवन में, और SSB से तो उम्मीद भी नहीं था। मुझे तो उम्मीद भी नहीं था कि कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब मुझे रेकमेंड करेगा, तो मुखौटा किस लिए पहनना है जब मुझे कुछ SSB से उम्मीद ही नहीं है, तो छटपटाहट काफ है। तो एक चीज़ समझ गया था कि मुझे अपनी गलतियों से सीख लेने का एक टेंडेंसी आ गया था, बिकॉज ऑफ दिस रियलाइजेशन कि भैया मैंने 12th में क्या गलती किया, उन गलतियों को अब ना करो। और वो कोशिश किया यहाँ पे, तो रिजल्ट आया नहीं, 60% नहीं आया, बट सिंसियरिटी था। रिलेशनशिप में मैंने जो जो गलतियाँ किया उसका एहसास हुआ। मेरे पापा से, मम्मी से ज़्यादा मैं पापा से ज़्यादा क्लोज था, पापा से खुल के बोलता था, वो भी बोलते थे जो हो गया अच्छी बात है, तो समझ में आ रहा। तो उन्होंने मुझे बहुत एक इमोशनल सपोर्ट दिया टू गेट ओवर दैट। एंड धीरे धीरे एक्चुअली माई रिलेशनशिप विथ माई फादर एंड माई मदर का एटीट्यूड थोड़ा सा अलग टाइप का है। विथ माई फादर इट एक्चुअली चेंज्ड, एंड वो एक मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर थे।
खूब माफ़ कर सकते थे वो मेरे पिताजी। सिस्टर के साथ भी ग्रेजुअली जो है, क्योंकि अलग हो गए थे, मैं तो 18 साल में फौज में चला गया, तो रिलेशन स्टार्टेड डीलिंग। सो दिस improved, though there were mistakes in the past, but by the time I went to the SSB, not because of SSB, as part of my journey for life, I started doing a lot of correction. सेकेंड, क्योंकि मैंने एजुकेशन में बहुत गलती कर दिया था, तो जब मैं फौज में आया तो मुझे वो गलतियां दोबारा नहीं करना था. सो आई वॉन्ट टू बी अ गुड सोल्जर, क्योंकि मैं एक अच्छा बेटा तो नहीं बन पाया, अच्छा स्टूडेंट तो बन पाया, लेट मी ए गुड सोल्जर. पहले मुझे एक टाइम में फौज से भाग जाने का भी मन किया था, ये कहाँ फंस गया करके. पता लेटर मैं सोच कर भाग के जाऊंगा कहाँ, उन्हीं माँ बाप के पास जिन्होंने बोला था कि बेटा पढ़ ले. तो कुल मिला के बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट में था. फिर मैंने कहा ऐसी की तैसी, जो हो गया हो गया, whatever mistake I've done, let me put a full stop, let me correct it. So मैंने अपने ट्रेनिंग में बहुत ध्यान दिया. तो मैं अपने मिलिट्री ट्रेनिंग में भी और ट्रेड ट्रेनिंग में भी आउटस्टैंडिंगली मैंने अपने कॉन्सेंट्रेशन को लगाया, अपने उसको लगाया. एंड अंधों में काना राजा था. आई डिड वेल इन बोथ मिलिट्री ट्रेनिंग एज वेल एज इन द ट्रेड ट्रेनिंग, एंड आई वॉज द बेस्ट ट्रेनिंग. वो सब चीज़ें मैंने बाद में पिछले वीडियो में बताया था. आई वॉज रिटेन देयर. मैं अपने से सीनियर हवलदार लोगों को मैथ्स और फिजिक्स वाले, रेडियो इंजीनियरिंग वाले के सब्जेक्ट्स को पढ़ाता था, बिकॉज आई वॉज रियली गुड. तो मेरा ये वाला जो डोमेन है ये बहुत अच्छा था. नॉट बिकॉज मैं SSB जा रहा था, बिकॉज मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए, फॉर माई ओन सेल्फ एस्टीम, मैं अपने ट्रेड में आई वॉज एक्सट्रीमली गुड. माई ट्रेड वॉज TER, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक रेडियो. आजकल ये चेंज ही हो गया. तो उस टाइम आई वॉज एक्सट्रीमली गुड. मैं अपने क्लास में हर टाइम टीचर ना हो तो मैं आगे खड़ा होता था, और मेरे अंदर एक स्किल आ गया था उसी टाइम से कि मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ अगर मुझे समझ में आ जाए तो मैं उसको बहुत ईजी करके मैं अपने क्लासमेट, बैचमेट को बता पाता था. वो स्किल आज भी है. कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लैरिटी के साथ में बता पाने की क्षमता मुझ में आज भी है. और ये क्षमता मुझे अब जब देखता हूँ तो ये मेरे को अपने मिलिट्री ट्रेनिंग में देखना शुरू हो गया. तो उससे पहले नहीं, उससे पहले पढ़ता ही नहीं था. काबिलियत था लेकिन कभी उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ. तो मेरा जो क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन था, नॉट इंग्लिश, इन जनरल कम्युनिकेशन, हिंदी में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था ट्रेड ट्रेनिंग के टाइम में. क्योंकि ट्रेड में आई वॉज एक्सट्रीमली गुड. आई एम स्टिल सेइंग आई एम एक्सट्रीमली गुड. एंड मैं अपने क्लास में बोलता था, और सीनियर मतलब मैं सिपाही था, मैं रिक्रूट था, लेकिन मैथ्स पढ़ाता था क्लास 1 के हवलदार और नाइट्स को. आई वॉज गुड एट दैट. तो मेरे अंदर एक आत्मसम्मान कि मैं आई एम गुड, आई एम टीचिंग हवलदार, ये आना शुरू हो गया था, जिसके कारण मेरा वर्क रिलेटेड नॉलेज एंड आर्मी का, अपना कोर ऑफ सिग्नल का, मेरे यूनिट का, ये सब बहुत ज़्यादा मैं अपने कैपेसिटी से ज़्यादा करना शुरू कर गया. कुल मिला के ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा ये CIQ, ये नॉट फॉर SSB, ये इन जनरिकली बढ़ना शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ माई एटीट्यूड, दैट हेल्दी क्यूरियोसिटी बोलते हैं ना, सीखने की ललक. तो मैं अपने TER ट्रेड के अलावा, मैं TER के अलावा TES, EFS, ऑपरेटर, इन सब का काम भी सीखता था. और उसके बदले में मुझसे काम करवाते थे. बोलते जा मैस से चाय लेके आ, कभी वो मेरे से समोसा मंगवा लेंगे. लेकिन वो सब करके मुझे मल्लू बोलते थे. बोले मल्लू मल्लू, तंबी मल्लू बोलते थे. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको जो बोलना, बट मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ. तो कुल मिला के मैं अपने ट्रेड के अलावा, अपने ट्रेड में तो माहिर था ही, मैं दूसरे ट्रेड का भी एक अवेयरनेस आना शुरू हो गया. मतलब मैं ये बोल रहा था कि कैसे मेरा डेवलपमेंट, जो मैं आज को बोलता हूँ आप डिफेंस रिलेटेड नॉलेज करो, तो मुझे आर्मी नेवी के बारे में तो उतना उस टाइम नहीं पता था ना. मेरे को तो याद भी नहीं SSB के लिए मैंने वो सब ज़्यादा किया था. बट नेवी एंड एयरफोर्स के बारे में, बट आर्मी के बारे में बहुत अच्छे से मेरे को पता था, बिकॉज ऑफ माई ओन डिज़ायर टू ग्रो. फर्स्ट आर्मर्ड डिविजन में था, तो मैं डिवीजन तक के जो कॉन्सेप्ट था वो मैं सुनता था. मेरे ऑफिसर्स क्या बोलते हैं, उनको मतलब चाय पिलाना पड़ता था, उनके पीछे मैं खड़ा होकर, मैं ऐसे चाय नहीं पिलाता था, मैं, मेरे कान सुनते थे ये लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं. सो देयर वाज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ दैट वाज टेकिंग प्लेस, नॉट फॉर SSB, सिंपली एज अ पर्सन. वीक क्या था, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, इसको मैं सुधार रहा था, इसमें मैं इंटरेस्ट ले रहा था. नेक्स्ट, स्पेयर टाइम, हॉबीज एंड इंटरेस्ट. ना एज अ फौजी ना तो टाइम मिलता था, ना मेरा ऐसा कुछ था. कुछ बुक्स जेन्यूनली पढ़ता था, छोटे छोटे. उस टाइम तो ये वाला क्या बोलते हैं, टीवी में एक टीवी होता था कृषि दर्शन, कुछ आता था चित्रा, तो वो तो सीनियर लोग, हवलदार लोग पकड़ के बैठ जाते, तो हमें वो सब तो मिलता नहीं था. तो मैंने वहाँ पे जो एजुकेशन हवलदार थे मेरे फर्स्ट आर्मर्ड डिव के, आई डोंट रिमेंबर, उनसे दोस्ती कर लिया. तो वो मुझे क्या करते थे,
दिन का न्यूज़पेपर रात को घर ले जाने देते थे। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू को घर मतलब बैरक में ले जाने देते थे, बदले में मुझे उनका लाइब्रेरी का साफ सफाई करके देना, शीशा वीशा और सब साफ मैं कर देता था उनको, मेरे को क्या है, उसके बदले में मुझे न्यूज़पेपर देते थे, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था ड्यूटी में। ये साथ में मैंने एक चीज़ और करना शुरू कर दिया था करंट अफेयर्स के लिए। जब मेरे को एसएसबी जाना पड़ा तो मुझे एक चीज़ पता चल गया था, करंट अफेयर्स चाहिए, तो करंट अफेयर्स चाहिए तो चाहिए, और क्योंकि इज्जत बचानी थी तो मैंने एक 3 बैंड का रेडियो खरीदा था फिलिप्स का। उस फिलिप्स के रेडियो को अभी पुणे में आके उसको फेंका, क्योंकि बिल्कुल वो टूट ही गया था, बिल्कुल ही काम तो करता ही नहीं था, इमोशनल वैल्यू के साथ रखा था, उसका भी वो बॉक्स भी टूट गया था, तो मैंने उसको फाइनली डिस्कार्ड कर दिया। तो वो 3 बैंड का था, मीडियम वेव, FM1, FM2, एंड उस टाइम में मैं बीबीसी सुनता था, एंड यू विल नॉट बिलीव, दिन में 3 से 4 घंटे, कभी कभी 5 घंटे भी सुनता था बीबीसी हिंदी, ताकि समझ में आ जाए। उसके बाद बीबीसी इंग्लिश इंटरनेशनल एंड बीबीसी हिंदी इंटरनेशनल। और मेरा करंट अफेयर्स एसएसबी से पहले इतना ज़बरदस्त था, नॉट बिकॉज एसएसबी जा रहा हूँ, इज्जत बचाने के लिए, और वो इतना ज़बरदस्त था कि मैं बीबीसी के हर न्यूज़ को, छोटे से बड़े, पूरे, एक छोटा सा मैप भी था, है ना, क्या बोलते हैं, छोटा सा एटलस का जो मैप होता था इंडिया का भी, तो देखता रहता क्या है। और बीबीसी का न्यूज़ सुनने की मतलब एक लत ही लग गई थी, एक एडिक्शन हो गया था बीबीसी का न्यूज़ सुनना, और बीबीसी का न्यूज़ हिंदी में सुनना ताकि समझ में आ जाए, फिर इंग्लिश में सुनना, फिर इंग्लिश में हवा में बोलना, मतलब दिस बिकेम वेरी पावरफुल। प्लस ऊपर से न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़ का कुछ इंटरेस्ट नहीं था पहले, लेकिन एसएसबी जा रहा हूँ भैया मुझे करना, तो जाने अनजाने में चस्का ही चढ़ गया, रेकमेंड होना ही नहीं था, छटपटाट नहीं था, तो पूरा ध्यान प्रोसेस पे था। एंड देन सेल्फ इवैल्यूएशन, मुझे कोई स्वॉट एनालिसिस करना तो नहीं आता था, लेकिन क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतने गलतियां किया था, तो उन गलतियों का एक प्रायश्चित तो हो ही रहा था, तो सेल्फ इवैल्यूएशन मेरा इंटरनली हो रहा था बहुत कुछ। वो तो जैसे ही मैं फौज में गया, जैसे ही मेरा 12th ड्रॉप हो, वहाँ से स्टार्ट हो गया था, पापा से मार पिटाई, डांट खाना, फौज में जाना, फौज में जाके भाग जाने का मन, ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ के साथ, ये सब करके। सो कहीं ना कहीं असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन जो मैं आज करा रहा था, वो बिना किसी असिस्टेंस के मैं खुद ही करना शुरू कर दिया। दैट वाज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, एंड वो एसएसबी के लिए नहीं कर रहा था, टू अंडरस्टैंड मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, व्हाट आई एम डूइंग विथ माई लाइफ। मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे, पापा पढ़ाने को तैयार है, मैंने क्या कर दिया, एंड उसके बाद भी मेरे पापा इज सो फॉरगिविंग, मतलब ही सो फॉर, एक तो या तो मेरे को कड़क करके मारते रहे, नो, उन्होंने मुझे माफ़ भी कर रहे हैं, मेरे, मैं अगर सॉरी बोलूँ तो वो माफ़ी कर, कुल मिला के बहुत ज़्यादा अंदर एक उथल पुथल शुरू हो गया था। जिस तरह से आप लोगों को एसएमएल में आने से उथल पुथल हो जाता है, एसएमएल में आई पुट यू थ्रू दैट मॉड्यूल, बट मेरे केस में मैं अपनी गलतियों से खुद ही बहुत कुछ सीख रहा था। तो सेल्फ एवेल्युएशन जो था, मैंने कोई क्या बोलते, किसी से, किसी बुक से ऐसे कुछ नहीं, अपने ही जीवन की गलतियों को मंथन करके वो एक नेचुरल प्रोसेस से होना शुरू हो गया था। एंड क्योंकि रिकमेंडेशन की चिंता नहीं थी, तो सच बोलने के लिए भी नहीं डर रहा था, तो खुल के मतलब अपने बारे में समझ रहा था, क्या गलती हुआ, क्या कैसे उसको सुधारना, एक इंटरनल एक चर्निंग हो रहा था। एक अच्छा, मैं मेरे अंदर एक अच्छा सोल्जर बनना था, एक अच्छा बेटा बनना था, एक अच्छा दोस्त बनना था, एक अच्छा इंसान बनना था। इसके ऊपर ज़्यादा जोर था, बजाय कि एसएसबी में रिकमेंड होना है। मेरे लिए तो अपनी औकात से ज़्यादा मिल गया था, मैं तो सिपाही बन गया, अदरवाइज मेरा जो चाल था उसमें सिपाही भी नहीं बनना था। तो मुझे एसएसबी से रिकमेंड होना तो सेकेंडरी, वो तो था ही नहीं। मेरे को ये था कि आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बिकम ए बेटर सन, बेटर सोल्जर। आई वॉज ऑलरेडी ए बेटर सोल्जर, क्योंकि वहाँ पे करेक्शन हो गया था। दारू दूरू को मैंने पूरे सर्विस लाइफ में हाथ नहीं लगाया, आज भी नहीं, तब भी नहीं। वो ज़बरदस्ती कोई सीओ पीछे पड़ जाए, सिगरेट नहीं किया, मतलब मैंने अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया कि मैंने जो गलतियाँ कर रहा था 12वें क्लास तक कर दिया, अब जानबूझ के एरर ऑफ इंटेंट नहीं करूँगा। ये एक मन में आ गया था और ये बैठ गया था मेरे दिल में। उसके कारण नॉट फॉर एसएसबी, लॉट ऑफ करेक्शन जो मैं आप लोगों से बोलता रहा था, वो मेरे अंदर वैसे ही शुरू हो गया था। तो ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए आपको जो पास्ट को इवैल्यूएट करना है, लाइफ एनालिसिस जो आजकल बोलता हूँ, वो एक नेचुरल प्रोसेस से मेरे अंदर हो रहा था। आज तो मैंने उसको स्ट्रक्चर करा के आप लोगों से कराता हूँ। सो पास्ट से यू हैव टू लीव बिहाइंड द पास्ट, की ज़्यादा चिंता करके चिंता चिता समान, उससे सिर्फ सीख लेना है, उन मिस्टेक्स को दोबारा नहीं करना। सेकेंड, प्रेजेंट में अगर आपको पास फ्यूचर में कुछ चाहिए तो आज उसके लिए एक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप एसएसबी जा रहे हो, आपको फ्यूचर में एसएसबी में रिकमेंड होना है,
वो रेकमेंड होने से, छटपटाने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रेजेंट में, वर्तमान में यू हैव टू एक्ट इट। अगर आज आप ट्रेनिंग में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स करोगे तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हारे परफॉर्मेंस का, फ्यूचर का कारण बन जाएगा और रिजेक्शन का कारण बन जाएगा। और ये चीज़ मेरे को, क्योंकि सेलेक्ट होने का वो छटपटाहट ही नहीं था, तो मेरे को तो कोई प्रेशर ही नहीं था कि मेरे को छटपटाहट है। हाँ, मेरे को एक ही चीज़ था, मेरे को ये बेवकूफ़ ना बोले। मैं बेवकूफ़ था, मैं गधा था, अब नहीं हूँ। मैंने बहुत करेक्शन किया है, तो मुझे गधा मत बोलना है, इसके लिए पूरी लड़ाई थी। तो मुझे बड़ा क्लियरली समझ में आ गया था कि फौज में आने से पहले तक मैं जो बोलता था, मैं जो करता था और जो मैं सोचता था, इसमें कोई भी जुड़ाव नहीं था। और मैं ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ करता था। ट्रस्ट के साथ मतलब माँ बाप से झूठ बोलना, कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं जाना, कॉलेज से, जूनियर कॉलेज से बंक मारना, बीच में जाके बैठना, सारे उल्टे काम। मतलब मैं बोलता अच्छा था, एक्शन उल्टे करता था, सोचता उल्टा था, कॉन्ग्रुएंस नहीं था। ये जो कॉन्ग्रुएंस बोलता हूँ, मेरे जीवन में कॉन्ग्रुएंस नहीं था। इसलिए मुझे एसएसबी से कोई उम्मीद भी नहीं था रेकमेंड हो जाऊंगा, ना मुझे एसएसबी को मास दिखा के रेकमेंड होने की चाहत थी। मुझे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं चाहिए था। मुझे कोई सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड करके ऑफिसर नहीं बनना था। मुझे कोई कोर क्वालिटी को हाइड करके ऑफिसर नहीं बनना था। मुझे ना डेड बॉडी को ड्रामा करके ऑफिसर, मुझे ऑफिसर ही नहीं बनना था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे को अभी बहुत टाइम लगेगा। तो मुझ में कोई छटपटाहट नहीं था। हाँ, मुझ में क्या था, सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जोर शोर से चल रहा था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मैं पापा मम्मी से जो बोलता हूँ, जो करता हूँ और जो सोचता हूँ, उसमें जुड़ाव नहीं थे। वो उनको बहुत तकलीफ दे रहा था। तो मेरा एसएसबी तो घर पे ही हो गया था पापा मम्मी के साथ। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि तू बिल्कुल झूठ बोलता है, सच नहीं बोलता, और वो मुझे बहुत तकलीफ देती थी। तो मेरे अंदर मैं क्या, ऑयल क्यों, तब भी शायद यही थे, आई डोंट रिमेम्बर, तब 29 थे या 15 थे, जो भी थे। तो मुझे ना इस ऑयल क्यों की चिंता थी, ना रिकमेंडेशन की चिंता थी। मुझे एक ही चिंता थी, आई वांटेड टू बिकम अ बेटर पर्सन, आई वांटेड टू बिकम अ बेटर सन एंड ऑफ कोर्स अ बेटर सोल्जर। तो अब क्योंकि एसएसबी जाना था, तो एसएसबी में मुझे एक ईमानदार बंदा जिसने गलतियां किया है और वो अपनी गलतियां मानता और इज्जतदार लड़का है, करेक्शन किया है, इतना सुनने से काफ़ी था। रेकमेंड तो मैंने खुद ही रिजेक्ट कर दिया था। तो मेरा सारा जो खेल था कि इस सोच में जुड़ाव कैसे लाऊं, नॉट फॉर एसएसबी, फॉर लाइफ। मैं चाहता था कि मैं जो सोचता हूं वही बोलूं और वही करूं। कॉन्ग्रुएंस, जो मैं आप लोगों से बोलता हूं, कॉन्ग्रुएंस इन परफॉर्मेंस, ये एसएसबी के लिए नहीं है, जीवन के लिए। और उसके लिए मेरे को सच बोलना पड़ेगा। और मैं सच बोलता हूँ, तब से बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ। आज भी ट्रेनिंग में भी मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बड़ी हुई बातें बोलता हूँ, क्योंकि वो सच है। सुनना चाहते हो नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं सच। और मैंने ये भी समझ में आ गया था कि मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, पढ़ाई को लेके, रिश्तों को लेके, कुछ चीज़ों को मैं सुधार ही नहीं सकता था। सो जो मैं आज आपको सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात बोलता हूँ, ये मैं जाने अनजाने में समझ में आ गया था कि मैं जीवन में कुछ चीज़ों को सुधार नहीं सकता, उसकी सिर्फ चिंता कर सकता हूँ। और उन चीज़ों के ऊपर मैं अपना एनर्जी लगाऊंगा तो मेरा समय व्यर्थ जाएगा। ये क्लियर कट पता चल गया था। तो मुझे ये देखना था कि किस चीज़ के ऊपर मैं आज भी नियंत्रण है और मुझे अपनी ताकत को वहाँ लगाना है। तो ये जो सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात बोलता हूँ, ये बड़ा क्लियर कट पता चल गया था। तो मेरे पढ़ाई में जो 10th 11th 12th उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे कर सकता था। 12th में पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें कोशिश के बावजूद 58% पे अटक गया। बट मेहनत किया था, दुख लगा, पहली बार पढ़ाई किया, 60% नहीं आया, बड़ा मन था 60 आए, नहीं आया, बट कोशिश किया, क्योंकि मैंने शिफ्ट कर दिया अपनी ताकत को। क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे मैंने स्वीकार किया, और जो मेरे कंट्रोल में वहाँ पे फोकस शिफ्ट किया। तो मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल ये मेरे कंट्रोल में है, भले मेरा कम था, और इसके बदले इसको मैंने कैसे किया उसको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप मानोगे नहीं, फौज की ड्यूटी में जब 2 घंटे रात को ड्यूटी देते हैं, मैं कुत्तों से और सुअरों से भी इंग्लिश बोला हुआ है। हवा में इंग्लिश बोलता था, बीबीसी सुना, वो पूरा हवा में मारता था। जो आज आपको ऑथेंटिक कम्युनिकेशन स्किल में क्लासेस में बोलता हूँ मैं, बोलो, आपके पास तो ग्रुप है, मेरे पास ग्रुप नहीं था।
मजाक उड़ाते थे। मैं कुत्तों से बात करता था, मैं सुअरों से बात करता था। 3TTR गोवा में एक पिगरी फॉर्म होता था फौज का, कोई ड्यूटी में जाने नहीं जाना चाहता था, मैं वहाँ जाता था, क्योंकि वहाँ जाने से फ़ायदा ही है उस साइड कोई आता ही नहीं है। एक बार ड्यूटी जैसी ड्यूटी एनसीओ आएगा, थम कौन होता है बोलो, बाकी टाइम में अंग्रेजी प्रैक्टिस करो। मैं इतना प्रैक्टिस किया है कि आई स्टार्टेड डेवलपिंग अ कंफर्ट विद इंग्लिश लैंग्वेज विथ नो बडी टू स्पीक। कोई ज़्यादा मेरे को बोलने के लिए, हाँ एक जगह बोलता था जब मैं अपना इधर जाता था, क्या बोलते हैं, जब अपना क्लास 1 की क्लासेस लेता था, उन लोगों के सामने इंग्लिश मारता था। ऑफिसर्स जब फर्स्ट आर्मर्ड डिफेंस में जब नए सेकंड लेफ्टिनेंट आते थे, तो मेरे ट्रेड के लिए इंस्टेड ऑफ ए JCO माय कंपनी कमांडर से उस तंबी को भेजो मुझे, मतलब दे वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट माय नॉलेज, एंटीना इरेक्शन हो या रेडियो सेट के बारे में हो। तो वहाँ पे ऑफिसर जब आता था, एक बार सैल्यूट मारना, जय हिंद श्रीमान, उसके बाद अपना टूटा फूटा अंग्रेजी मारना। क्यों भैया, आई यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ प्राइड, एंड वो ऑफिसर्स को भी मजा आता था कि ये अजीब लड़का है, सिपाही है लेकिन इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा है। सो समाउ मैं बेशरम भी था, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कोई हंसे, तो मुझे उस तरह से मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया। सो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्पेयर टाइम, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। आई डोंट थिंक मेरा कोई हॉबीज एंड इंटरेस्ट को कुछ खास डेवलप कर पाया, बिकॉज फौज में था, बट मैं स्पेशल गार्ड में था। स्पेशल गार्ड में, यूनिट के स्पेशल गार्ड में रहना, COST कॉर्डली करना, यही सब मेरे स्पेशल अचीवमेंट में आया यूनिट में। फिर क्या बोलते हैं, क्लास में ट्रेड में फर्स्ट आया, उस तरह के बाकी चीज़ें। बट कोई बुक रीडिंग या कोई ऐसा खास हॉबी बोलने के लिए उस टाइम मेरे साथ कुछ नहीं था। बट देयर वर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आई कुड ऐड। तो मेरा सबसे वीक था कि मेरे फौज में आने से पहले ये सुधारना शुरू कर दिया था। इसमें आई वॉज वेरी गुड एट माई ट्रेड एंड एक्सट्रीमली गुड, नॉट गुड। और इसमें ये मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं बोल सकते थे, बट जो भी था विद इन द आर्म फोर्सेस के अंदर आने के बाद जो मैंने किए उस चीज़ को मिला मुलू के, ये मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया था। और ये सेल्फ इवैल्यूएशन मेरा एक नेचुरल प्रोसेस शुरू हो चुका था। और आपको पता है, ये सेल्फ इवैल्यूएशन का इक्विवेलेंट है सेल्फ डिस्क्रिप्शन इन साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो मुझे साइकोलॉजिकल टेस्ट में रेकमेंड होगा नहीं होगा, जब उसकी चिंता ही नहीं थी, तो मेरे को सच लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, और जो मैंने लिखा वही हूँ मैं आज भी तब भी। तो कुल मिला के मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे इतने वीक PIQ के बावजूद द पर्सन हु कुड स्पीक टू मी डायरेक्टली एंड क्वेश्चन मी एवरीथिंग वॉज इंटरव्यूइंग ऑफिसर। और बाद में GTO बनने के बाद पता चला कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैड गिवन मी द हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ ऑल द 3, GTO, साइक और इंटरव्यू में। जबकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास वो पूरा दिख रहा है, ही कैन स्पीक, ही कैन कोरिलेट। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मेरे अंदर की उस ईमानदारी को जरूर देखा होगा, जहाँ पे मेरा मानसा, वाचा और कर्मना में जुड़ाव, मैं जो सोच रहा था, जो बोल रहा था और जो कर रहा था, उसमें कोई भेदभाव नहीं मिला। सच की नाव हिलती है, डुलती है, मगर डूबती नहीं है। और मुझे कोई शक नहीं है कि मैंने अपनी गलतियों को कभी नहीं छुपाया हुआ उनके सामने, क्योंकि रिकमेंडेशन की चाह ही नहीं थी। और उसका असर ये हुआ कि आई गॉट रिकमेंडेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विथ दिस काइंड ऑफ माई पास्ट, एंड आई वाज सरप्राइज। मुझे पक्का लगा कि इनसे गलती हुआ है। लेकिन जब मैं वायोज में गया, उसके बाद जब डिग्री कोर्स किया, तब तक पता चल गया था कि SSB से गलती नहीं हुआ। और तब तक तो मेरा एक एटीट्यूड बन गया था कि मैं कभी भी जीवन में SSB को गलत प्रूव ही नहीं करूंगा कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट करके गलती किया। ये कभी प्रूव ही, ये होने ही नहीं दूंगा। ये मेरा एक, आज भी टुडे आई एम रिटायर्ड, लेकिन मैं SSB ने मुझे सेलेक्ट किया, उस गलती नहीं किया। मैं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए मैं GTO की SSB की ट्रेनिंग में भी रत्ती भर झूठ नहीं बोलूँगा। ये मेरा अपने से वादा है, नॉट बिकॉज मेरे को SSB को प्रूव करना है। मैं अपनी आंखों में गिर जाऊंगा अगर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिखा दूंगा और आपको बोलूँगा कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, सुसाइडल टेंडेंसी। मैं ऐसा ट्रेनिंग करके मैं ना नंबर 1 बनना चाहता हूँ, ना मैं अपने आप को इंडिया का बेस्ट ट्रेनर बोलना चाहता हूँ, नहीं बोलना चाहता। मैं ईमानदारी से अपने ऊपर काम किया था, और मैं चाहूँगा जो लड़का लड़की मेरे पास आए वो ईमानदारी से अपनी गलतियों को समझ के, सीख करके अपने आप को काबिल बना के ऑफिसर बनो। नहीं तो अफगानिस्तान के, अफगान नेशनल आर्मी टाइप के बन जाओगे कि पहली गोली चले भाग जाओगे। सो नो टिप्स एंड ट्रिक्स। गणेश बाबू ने अपने जीवन में टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं किया, और आप मेरे पास आओगे तो भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं आएगा। इसलिए मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगती है, क्योंकि मेरा जीवन में बड़ी गलतियाँ किया है।
और अगर मैंने गलतियां करके उससे सुधारा है तो मुझे कोई रीज़न नहीं है कि आप लोग क्यों नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ट्रेनिंग थोड़ा सख्त है, मीठा नहीं बोलता, मैं एकदम मीठा मीठा नहीं बोल सकता, ना मैं आपको रिकमेंडेशन का वादा करता हूँ, क्योंकि रिकमेंडेशन की उम्मीद तो मुझे खुद नहीं थी, तो मैं आपको कहाँ से दे दूंगा। हाँ, एक चीज़ है, 500% क्लैरिटी का वादा है, और वो वादा ये है कि आपके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन में कॉन्ग्रुएंस ला के दे सकता हूँ। अगर वो उनके एसएसबी के एक्सपेक्टेशन तक आ जाते हो, आप रिकमेंड हो जाओगे, नहीं तो आप एक अच्छे बेटे, अच्छे बेटी, अच्छा सिटीजन और एक अच्छा इंसान जरूर बन जाओगे। बाकी एसएसबी तो बनना नहीं बनना मेरे हाथ में नहीं है, वो तो उनका जॉब रिक्वायरमेंट। सो दैट्स अप्रोच दैट आई हैव माई ट्रेनिंग। तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर गणेश बाबू इस टाइप के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ रिकमेंड हो सकता फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट कोचिंग, देन आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव फेयर चांस टू ग्रो योरसेल्फ एज अ पर्सन। रिकमेंड होना नहीं होना वो अलग बात है, बिकॉज एसएसबी में just because I got recommended does not mean everybody will get recommended, because एसएसबी का जॉब रिक्वायरमेंट है। एसएसबी को पेड़ चढ़ने वाले चाहिए, और आप अगर आप घोड़े हो तो पेड़ कैसे चढ़ोगे? दैट्स अ जॉब रिक्वायरमेंट, बट ऑल ऑफ यू हैव ट्रेमेंडस पॉसिबिलिटी टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप पैसे देके मुखौटा चढ़ाने की बजाय मुखौटा उतार के अपने अंदर जरा जुड़ाव लाओ कर्मा, वाचा और मानसा में, एंड दैट इज पॉसिबल। और उसका पॉसिबिलिटी पे आता है, वहां पे आता है आपका एसएमएल का रोल, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, जिसका कोर फंडा है कि हम दो दुनिया में रहते हैं, हमारे अंदर की दुनिया और हमारे बाहर की दुनिया। एंड इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो हम गिफ्ट रैपिंग बदल रहे हैं, लेकिन गिफ्ट को काम नहीं कर रहे हैं। मैं क्या बोलता हूँ, गिफ्ट रैपिंग छोड़ दो, आप गिफ्ट पे काम करो, क्योंकि गिफ्ट रैपिंग कितना भी अच्छा हो वो तो फाड़ ही दिया जाएगा। सो लेट्स वर्क ऑन द गिफ्ट, एंड गिफ्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का मॉड्यूल विच फोकसेस ऑन बिल्डिंग द फाउंडेशन। उस फाउंडेशन के ऊपर हम एसएसबी के बिल्डिंग को बिल्ड करेंगे, बिना फाउंडेशन के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कोर क्वालिटी को हाइड करके डेड बॉडी का ड्रामा, इलॉजिकल ट्रेनिंग ना करो। पता नहीं मेरी बातें आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसमें एक ईमानदारी है, उसमें एक निष्ठा है। आप मेरी ईमानदारी और निष्ठा को समझ पा रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम है, बट मैं इस ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, ना तुम्हारे साथ, ना अपने साथ, ना एसएसबी के साथ। ये मेरा जीवन का एक मूल सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को मैं नंबर 1 बनने के लिए, या बहुत सारे लड़के लड़कियां मेरे पास आ जाए, इसके लिए मैं अपने इस सिद्धांत को नहीं बदलूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है मुझसे, और मैं इस कमिटमेंट को चेंज नहीं करूंगा। तो मेरे पास वही लड़के लड़कियां हैं जो अपने ऊपर काम करने को तैयार है, बजाय कि टीएटी डब्ल्यूएटी को ठीक करने के। जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हारा टीएटी भी ठीक हो जाएगा। जैसे जब मैं ठीक हुआ तो मेरा टीएटी ठीक हो गया, मैं रेकमेंड हो गया। तो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का जो अगला बैच है वो 30 अगस्त को शुरू होगा। नेक्स्ट बैच 30 अगस्त को, उसके बाद का 6 सितंबर, 13 सितंबर, 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को। सो दोस्त ऑफ इंटरेस्टेड यू कैन व्हाट्सअप मी, एंड अगर आपको इसके बारे में एक फीडबैक चाहिए तो आप फीडबैक भी ले सकते हो। और जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों को दोबारा ये वीडियोस बोल रहा हूँ, इन वीडियोस को एक बार देखना है। ACC 119 का वीडियो पहले बताया था, उसके बाद राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, व्हाट इज द सिलेबस फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, हाउ आई अप्रोच माय एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन, हाउ टू हैंडल योर मिस्टेक्स एंड एलिमिनेट योर वीकनेस इन लाइफ, सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस, एंड SML माइंड मैटर्स। इन वीडियोस को जरूर देखना जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ना भी हो तो जो लोग SSB जो मुझे कॉम्पोजिट बैच में ज्वाइन करना सकते हो वो देख सकते हो। इन वीडियो से आपको ये बहुत अच्छे से पता चलेगा कि हाउ टू ब्रिंग दिस कॉन्ग्रुएंस। ये TAT लिखने से नहीं आएगा, आप ठीक होने से TAT ठीक हो जाएगा। इस फंडामेंटल ट्रुथ को समझो। एंड अगर आपको फीडबैक चाहिए तो राशिद है, नलिन खरे है, अरुण कुमार है, जो कि रिसेंटली रेकमेंड, इन लोगों से बात करो कि इनको कैसे SML ने मदद किया है। नलिन खरे तो भी SSB जाने वाला है, यंग बॉय, 17-18 साल का है। प्लीज स्पीक टू, इज गोइंग फॉर NDA, एंड राशिद इज सर्विस एंट्री, अरुण कुमार इज ऑल्सो सर्विस एंट्री। आप लोग इनसे बात कर सकते हो। एंड अगर इफ यू विश टू रजिस्टर यू कैन व्हाट्सअप मी एट 8275577650. You can also call for any clarification. Next batch is starting from 30th August 2021 से लेकर 11 सितंबर 2021, 2 वीक का SML है। कॉम्पोजिट बैच लोगे तो उससे आगे आपको those details I will share. 500% clarity,
500% क्लैरिटी, क्योंकि इसी क्लैरिटी के बदौलत मैं आपसे बात कर रहा हूँ. मैं every word that I'm speaking, I'm aware what I'm speaking, and I want that you should also bring that kind of a clarity in your thinking. जब आपके सोच में क्लैरिटी आएगा, आपको परसेप्शन में क्लैरिटी आएगा, और जब आपके परसेप्शन में क्लैरिटी आएगा, आपके रिस्पॉन्स में एक बैलेंस आएगा, एंड योर परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव. और अगर वो एक्सपेक्टेड लेवल पे आ जाता है तो यू विल डेफिनेटली मेक इट थ्रू द SSB. सो प्लीज़ गिव मी एक फीडबैक, क्या समझ में आया. एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कमेंट्स अच्छा है, तो आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज. एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, कुछ पाना है तो कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी. टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कंफर्ट जोन में रखता है, अच्छा लगता है, बट डज नॉट हेल्प यू टू ग्रो. सो दिस इज़ माई अप्रोच टू ट्रेनिंग. समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सअप करना 8275577650. थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.